Namaskar learner, myself Dr. Roshan Lal, Assistant Professor, Department of Food Technology, लक्ष्मी बाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो लर्नर, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग means what is food packaging? So it is a process in which food material are generally packed in a container or in a pouch and it is properly sealed. It is an integral part of the food processing industries, means without the packing we are not able to sell our food product. So it is a very much important and very integral part of the food processing step. Now there are lots of packaging materials are there, so that packaging materials, which kind of packaging materials we have to use, that is very much important कि किस फूड को हमें किस पैकिंग मटेरियल के अंदर पैक करना है, उसको हम इस आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द पैकेजिंग फंक्शंस। सो बेसिकली जो पैकेजिंग है वो क्या क्या फंक्शन करता है। द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन इज द कंटेनमेंट, मीन्स ए पैकिंग मटेरियल इट कैन होल्ड द फूड प्रोडक्ट. So it has the tendency that it can hold the food product in a particular way so that the integrity will be maintained inside that. The second important function of packing material is to protect. Basically that packing material, it can protect the food material from the outer environment, it can protect from the dust, light and other outer conditions, like sometimes the moisture content will be higher, the humid condition will be there. So our packing material, it can protect our food product. The third function is the transportation, means it will take part in the transportation whenever we are going to pack our food product. तो हम उसको easily उसको एक place से दूसरे place पे हम लेके जा सकते हैं, means जो transportation है वो easy हो जाता है. The fourth function is the communication. So once if we had done the packing, then we are able to label it. तो अगर हम उसके ऊपर लेबल कर रहे हैं तो all the information that we want to provide that can be properly stick on that particular packaging material. So the packaging material, it will also take part in the communication. With the help of that packaging material, whatever information we want to give the consumer, that information we can easily provide. So these are the four basic functions. Apart from these four basic function, हमारे पास कुछ minor functions भी हैं. उसमें जो first function है कि वो आपका reduce करता है food spoilage को, स्पेशली जब आपकी कंडीशंस ठीक नहीं होती, आउटर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा है, तो आवर पैकिंग मटेरियल इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम देम. Second, it will retain the flavor, it will retain the texture, it will retain the appearance of the food product, means जो भी spices हैं, so generally that they are the flavored compound, the flavorous compounds are there. So if we are going to pack in a proper packaging material, then we can retain the flavor, we can retain the fragrance, we can retain the essence inside that. The moisture, it can also be contaminated, it can also be spoil our food product. So ultimately it can retain the texture of the food product. So अगर हमने उसको पैक किया है, properly पैक किया है, proper packaging material में पैक किया है, तो हम उसका texture को maintain करके रख पा रहे हैं. The next minor function is the, it can also take part in the maintain the hygienic environment in the marketplace. So sometimes if we will go in the market, we will see कि हमारे बिस्किट्स के प्रोडक्ट भी एक सेल्फ पे रखे हुए हैं, साथ में मीट फिश प्रोडक्ट भी हैं और ओपन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी है. So if we had properly packed each product, each commodity, then it will maintain the hygienic conditions. Now the next important thing is the type of packaging material, कि किस टाइप की पैकेजिंग हो सकती है. तो बेसिकली जो पैकेजिंग है, we had divided, we had classified in two categories. The first thing is the primary packaging. Primary packaging, it can also be called as the unit packaging. It is the packaging in which the food product is directly comes in the contact of the packaging material. So जब हमारा packaging material के साथ direct contact में आएगा food product, such kind of packaging is called as the primary packaging. Like अगर हम बात करें टॉफी, कैंडी, और उसको हम रैप कर रहे हैं रैपर से, तो दैट रैपर इट एक्ट्स एज ए प्राइमरी पैकेजिंग. जूस को हम फिल कर रहे हैं कंटेनर के अंदर, बोटल्स के अंदर,
टेट्रा पैक के अंदर, सो दैट इज द प्राइमरी पैकेजिंग। द सेकेंड थिंग और सेकेंड पार्ट ऑफ द पैकिंग इज द सेकेंडरी पैकेजिंग। Secondary packaging means it is a kind of packaging which carry the primary food packet. So sometimes if we had packed our food product in primary packet, and sometimes it will be required to pack in the larger carton, larger boxes. So in that case, that packaging is called as the secondary packaging. The benefit for secondary packaging is that कि हम उसको easily transport कर पाएंगे, उसको carry कर पाएंगे, store कर पाएंगे if we had done that secondary packaging. So these are the two basic type of packaging, primary and secondary. Now the next thing is that packaging material. So packaging material हमारे लिए सबसे important है कि हम किस टाइप का पैकेजिंग मटेरियल लें, किस फूड कमोडिटीज के लिए किस टाइप का पैकेजिंग मटेरियल इंपॉर्टेंट है. सो देर आर लॉट्स ऑफ फूड कमोडिटीज लाइक डेयरी है, मीट, फिश, fruits and vegetables, cereals, pulses. So there are lots of commodities, and each commodities they require different kind of packaging material because the nature of the food product is different. अगर हम जूसेस की बात करें उनका नेचर डिफरेंट है. अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें दैट हैव अ डिफरेंट नेचर. द सीरियल पल्सेस हैव द डिफरेंट नेचर. सो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल. द फर्स्ट पैकेजिंग मटेरियल इज द पेपर एंड बोर्ड. The second one is the metal containers, the third glass containers, and fourth and very much important is the plastic containers or plastic pouches. So one by one we will discuss here. The first thing we are going to discuss here that paper and board packaging. So basically जो पेपर और बोर्ड होते हैं ये आपके सेलुलोज से मिलके बनते हैं. प्लांट का एक पार्ट होता है सेलुलोज. फ्रॉम दैट सेलुलोज दैट पेपर एंड बोर्ड आर जनरली मेड. दीज आर इनएक्सपेंसिव and sometimes specially treated with some additional some additives so that the performance can be increased. हम सेलुलोज को हम ट्रीट कर देते हैं एडिटिव्स के साथ so that the performance can be increased. The packaging material जो हम यूज कर रहे हैं लाइक पेपर हम यूज कर रहे हैं sometimes it can be water resistant, sometimes we can make it moisture resistant as well as oil resistant. The tensile strength can also be increased whenever we are going for the treating. So now we are going to discuss about the types of paper कि कितने टाइप के पेपर है जिनको हम फूड पैकेजिंग के लिए जनरली यूज करते हैं. The first type is the glassine paper. The glassine paper is what? It is a transparent kind of paper that is resistant to oil, resistant to air and other chemicals. So that's why it is important because हमारा जो फूड प्रोडक्ट है हमें एयर के कांटेक्ट में नहीं लेके आना. सो जो फूड प्रोडक्ट जिनको फैट या मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं लेके आना मीन्स वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम द मॉइस्चर एज वेल एज एयर, देन वी कैन यूज सच काइंड ऑफ पेपर. दैट पेपर इज कॉल्ड एज द ग्लासाइन पेपर. जनरली टॉफी, स्वीट्स, बटर इनको हम यूज करते हैं ग्लासाइन पेपर में पैक करने के लिए. The next paper is grease proof paper. Grease proof paper अपने आप में बता रहे हैं यानी कि उसके अंदर से ऑयल और वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा. So these paper it can be used to pack the food product that doesn't require any kind of moisture contact. Means हमें moisture को protect करके रखना है फूड के अंदर तो हमें grease proof paper को यूज करना पड़ेगा. The main function of grease proof paper is that we can easily print on that paper. If we are able to print it, then we can make the label on that paper. Whatever information we wants to give, हम easily उस पेपर के ऊपर दे सकते हैं grease proof पेपर के ऊपर, जो कि हम ग्लासाइन पेपर के ऊपर नहीं दे पाएंगे. Because in glassine paper we are not able to print it. In grease proof paper we can easily print it. The next paper is vegetable parchment paper. So it is translucent in nature and it has good moisture resistant property and it is temperature resistant also. So such kind of packing material it is generally used for the packing of butter and cheese. Translucent nature का है, heat से effect नहीं पड़ेगा, moisture इसके अंदर नहीं आएगा, then it is very much suitable for the butter and cheese. The next paper is waxed or butter paper. So these are the glassine paper. Basically these glassine paper is generally waxed.
generally coated with the wax. So it will becomes waxed and butter paper. It has excellent moisture and fat resistant property, and it can be used biscuits, it can also be used for the packing of butter, it can also be used for the packing of chips, snacks. So such kind of food can generally packed in such kind of paper. Next one is enamel paper. Enamel paper is what we generally use some kind of coating on the surface of some simple cellulose based paper. That paper is called as the enamel paper. हमने simple paper ग्लेसाइन पेपर लिया, उसके ऊपर कोटिंग कर दी, एंड दैट कोटिंग विल टेक पार्ट्स इन द लेबलिंग, मीन्स वी कैन इजीली लेबल ऑन दैट, अदरवाइज द लेबलिंग इट विल बी डिफिकल्ट, प्रिंटिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, लेबलिंग डिफिकल्ट हो जाएगी. सो हम एनामल कर देते हैं, हम कोटिंग कर देते हैं. दैट काइंड ऑफ पेपर इज कॉल्ड एज द एनामल पेपर. इट इज जनरली यूज्ड फॉर द पैकिंग ऑफ चॉकलेट, टॉफी, उनके लिए हम जनरली इसको यूज करते हैं. Next paper is kraft paper. So it is strong paper, that's why the name is called as the kraft paper, and it is generally available in the brown color. It is chemically safe and it is generally used for the making of carton and carry bags. So brown color के carton and carry bags बनाने के लिए we generally use the kraft paper. It has the स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसको कैरी करना और इसके अंदर वेट को कैरी करना दैट विल बी इजी. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द पेपर और इज दैट इज द कोरुगेटेड पेपर्स. सो कोरुगेटेड पेपर, दीज आर द थिन पेपर एंड बेसिकली दीज आर वेवी इन नेचर. द बोर्ड्स दैट आर जनरली वेवी इन नेचर, ड्यू टू दैट कोरुगेशन द strength power that is going to be increased. In corrugated boards, that corrugated paper, it is generally used for the preparation of carton box. Whatever tensile strength, whatever pressure bearing or load bearing strength that is required, हम उसी के according हम उसकी corrugation कर देते हैं. The corrugation it may be big, it may be medium or it may be small. 3 टाइप की corrugation हो सकती है. Next one is these, if you will see here on the slides, so you will find the paper packaging containers. So there are different kinds of container that can be made with a different kind of paper. अभी हमने पेपर के बारे में देखा, बटर प्रूफ पेपर है, ग्रीस प्रूफ पेपर है, ग्लेसाइन पेपर है. सो उन पेपर से हम क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल बना सकते हैं. वी कैन इजीली मेक कॉर्न, हम फ्लैट बैग बना सकते हैं. फ्लैट बैग के साथ जो गसेट होते हैं, बैग विद गसेट, फोल्ड के साथ बैग को हम बना सकते हैं. बैग विद गसेट एट बॉटम एज वेल एज ऑन द साइड्स. साइड्स में भी आपके फोल्ड्स बनेंगे और बॉटम में भी फोल्ड्स बनेंगे. सो सच काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल, सच काइंड ऑफ पैकेजिंग कंटेनर दैट कैन बी मेड विद द पेपर. नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकेंड पैकेजिंग मटेरियल पे, दैट इज ग्लास कंटेनर्स. तो हमने जो पैकेजिंग मटेरियल अभी तक डिस्कस किया वो था हमारा पेपर. अभी हम ग्लास के ऊपर आ रहे हैं. तो ग्लास बेसिकली एक सबसे अच्छा पैकेजिंग मटेरियल कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इट इज केमिकली इनर्ट इन नेचर. इट डजंट रिएक्ट विद एनी काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, बिकॉज आवर फूड दैट हैव ए डिफरेंट नेचर, उसका पीएच लेवल अलग है, उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स के कंपाउंड्स है, तो वो रिएक्ट ना करे, इसलिए हम जनरली प्रेफर करते हैं ग्लास पैकेजिंग. बट इट इज कॉस्टली, इट इज कॉस्टली एंड इसको हैंडल करना वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज दीज आर फ्रेजाइल इन नेचर. थोड़ा सा प्रेशर पड़ने पे, गिरने पे वो टूट जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम्स कॉस्टली. ग्लास कंटेनर सबसे अच्छा क्यों है? एक तो हमने बात की इनर्ट है, देन सेकंड it cannot allow any kind of transport of gases, it cannot allow any kind of transport of the moisture, means chemical moisture किसी का transport नहीं होने देगा. It is resistant to high internal pressure, it has high glossiness inside that, glossiness इसके अंदर ज़्यादा होती है, and it is easy to clean and sterilize, and it has smooth surface. ये प्रॉपर्टी होने की वजह से हम ग्लास पैकेजिंग मटेरियल को जनरली कंसिडर करते हैं फूड की पैकिंग के लिए.
Now the types of glass containers. So we have two type of glass container. The first one is narrow neck and second one is the wide mouth. तो नैरो नेक बोटल्स हम देखते हैं जिसमें सॉस आ रहा है, हमारा टोमेटो केचप आ रहा है. वाइड माउथ में जैसे आपकी जैम आ रहा है, जेलीज आ रही है, तो वाइड माउथ के ग्लास कंटेनर्स. बेसिकली इनमें जो सीलिंग है, देर आर 4 काइंड ऑफ सीलिंग. ये 4 काइंड की जो सीलिंग है, इफ यू विल सी हेयर ऑन द स्लाइड्स, सो यू विल फाइंड द कोन प्लग सीलिंग, द क्राउन कैप सीलिंग, स्क्रू कैप एंड नैरो नेक बोतल के लिए हम यूज करते हैं, एंड लग कैप वाइड माउथ के लिए यूज करते हैं. सो ऑन द स्लाइड्स यू विल फाइंड हैव द स्क्रू कैप सीलिंग. जस्ट एक स्क्रू होता है, उसके थ्रू हम उसकी कैपिंग कर देते हैं. दैट काइंड ऑफ सीलिंग इज कॉल्ड एज द स्क्रू कैप सीलिंग. कॉर्क एक प्रेशर अंदर से हम उसका सरफेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं सो दैट इट कैन बी इजीली सील. क्राउन कॉर्क सील्स, उसमें हम जनरली जो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर जो कॉर्क आती है, दैट इज कॉल्ड एज द क्राउन कॉर्क सीलिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज द लग कैप. लग कैप जिसमें एक सिंपल सा एक स्क्रू होगा जिसके थ्रू वो इजीली सील हो जाता है. नेक्स्ट पैकिंग मटेरियल इज द मेटल कंटेनर्स. सो मेटल कंटेनर्स बेसिकली जनरली हम कैंस को यूज करते हैं फूड की पैकिंग के लिए. तो एल्यूमिनियम के साथ हम मिक्स कर देते हैं स्टील को, टिन को, एंड वी आर एबल टू प्रोड्यूस ए मेटल कैन. दैट मेटल कैन इट कैन कैरी द फूड प्रोडक्ट, and the food product it can be we can easily sterilize that can so that the shelf life can easily extend. These can easily seal, hermetically sealing can be done, airtight sealing can be done easily, and we can protect our food product from the outer contamination, from the outer environment. And they can be heated at a very high temperature. That's why we can easily sterilize the metal containers. सो मेटल कंटेनर्स में जो हम पैक कर सकते हैं, हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को, मीट को, स्वीट्स को हम इनको इजीली पैक कर सकते हैं. और इजीली पैक करने के बाद हम उसको ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो जाता है, उसका स्टोरेज भी ईजी हो जाता है, बिकॉज आफ्टर कैनिंग डजंट रिक्वायर्ड एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर द स्टोरेज. द नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल इज द प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स. So nowadays most of the food product that are generally packed in the plastic containers. So the plastic that has a great significance in the food industries and specifically in the packaging industries. So there are lots of plastic materials that can be used for the packing of the food materials. The first plastic packaging material is the low density polyethylene. Second, linear low density polyethylene. The third, high density polyethylene, and fourth one is the cast polypropylene. Fifth one is polyvinyl chloride, then polyethylene terephthalate, and the seventh one is the laminates and extruded films. So first we will discuss about the low density polyethylene and linear low density polyethylene. So these are tough, soft and slightly translucent in nature. We can pack our food product. In that we require good tensile strength. The impact resistance would be higher. It would be tear resistance. The water vapor cannot be carry out or cannot be transport from that kind of packaging materials. Generally हम fruits and vegetables को हम use करते हैं इस टाइप की पैकिंग के लिए. LDPE और LLDPE के लिए हम जो प्रीफर करते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को करते हैं, बिकॉज ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स की, ये गैसेस की परमिट करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए लो रेजिस्टेंस है गैसेस के. सो जनरली हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए हम लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन को यूज करते हैं. द नेक्स्ट वन इज द हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. सो इट इज मोर ट्रांसलूसेंट देन द LDPE एंड इट इज थिकर. LDPE हमारा थिन रहेगा तो HDPE थिक हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ होगी, बट इट हैज लोअर टीयर रेजिस्टेंस. वी कैन इजीली टीयर इट, such kind of packaging material, and it has good barrier property for the moisture and for the gases. The next packaging material is the CPP.
it is a clear material and has high tensile strength. It exhibits good barrier for the chemicals and it can withstand with a high temperature. अगर हमें sterilize करना है food product को तो हम CPP को use कर सकते हैं. It can bear a temperature of 121 degree centigrade and it is good resistant to oil and fats. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, इस ये टीयर जब हम करते हैं तो इतना मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता. इट इज ए पुअर रेजिस्टेंस फॉर द टीयर. ये एक इसका ड्रॉबैक है. अदरवाइज इट इज ए गुड पैकेजिंग मटेरियल. जनरली ब्रेड को हम इसके अंदर पैक करते हैं. नेक्स्ट वन इज अ पीवीसी. सो पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है गैस के लिए, ऑयल के लिए एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए. दैट्स वाई अगर हमें स्पाइसेस को पैक करना है तो वी कैन यूज द पीवीसी कंटेनर्स, वी कैन यूज द पीवीसी बोटल्स. वो फ्लेवर को रिटेन करके रखेगा. टेम्परेचर को भी होल्ड कर सकता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर बियर कर सकता है एंड जनरली हम इसको यूज करते हैं बोटल्स बनाने के लिए, जार्स बनाने के लिए, प्लास्टिक के कप बनाने के लिए. सो पीवीसी को यूज करते हैं. द नेक्स्ट पैकेजिंग मटेरियल इज द प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल इज द polyester, PET. So basically it is stiff, clear and high tensile strength. ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. स्टिफ रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है, ट्रांसपेरेंट होता है जनरली और इसीलिए हम इसको यूज करते हैं फॉर द पैकिंग ऑफ वाटर, फॉर द पैकिंग ऑफ जूसेस. जितनी भी आपकी बोटल्स आती है, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर बॉटल, इट इज जनरली पैक्ड विद द पेट बॉटल. मॉइस्चर के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. हीट सीलिंग प्रॉपर्टी अच्छी है इसके अंदर, हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है. सो दैट्स व्हाई इट इज जनरली यूज्ड फॉर द पैकिंग ऑफ सच स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट. द नेक्स्ट पैकेजिंग इज द लैमिनेट्स एंड को एक्सट्रूडेड फिल्म्स. सो अभी तक हमने बात की कि हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन है, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन है, मेटल्स हैं, हमारे पास पेपर है. अब जो को एक्सट्रूडेड और लेमिनेटेड है इसमें हम क्या करते हैं और जो जनरली फूड इंडस्ट्रीज के अंदर प्रैक्टिस फॉलो होती है, दे जनरली मिक्स 2 or 3 काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स. सपोज दे हैड मिक्स द पेपर विद द एल्यूमिनियम एंड द लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन. सो उन्होंने क्या कर दिया, एक एक्सट्रूजन बना दिया, एक लेमिनेट्स करके उन्होंने एक्सट्रूडेड एक प्रोडक्ट बना दिया और उस पैकेजिंग मटेरियल से फिर वो प्रोडक्ट को पैक करते हैं. That practice is generally followed because every packaging material that have certain limitation. अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर है वो मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाएगा, वो गैस को 100% रिटेन नहीं कर पाएगा. उसके लिए क्या हो गया, हमारे पास एल्यूमिनियम है, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन है. अब एल्यूमिनियम है, उसके अंदर सीलिंग प्रॉपर्टी नहीं है, सो सीलिंग प्रॉपर्टी लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन. सो दैट्स व्हाई वी हैड मिक्स द 3 काइंड ऑफ पैकेजिंग सो दैट वी आर एबल टू मेक ए परफेक्ट पैकेजिंग मटेरियल्स. हम पेपर को यूज कर रहे हैं बाहर की साइड, तो बाहर की साइड जो पेपर यूज कर रहे हैं वो हेल्प करेगा उसकी प्रिंटिंग में, लेबलिंग में. हमें प्रिंट करना है, हम लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन के ऊपर वी आर नॉट एबल टू प्रिंट इट. हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन के लिए डिफिकल्ट होगा, बट if it is a paper then we can easily print. Now we will talk about the characteristics of the packaging materials. So क्या क्या characteristics होनी चाहिए packaging materials के लिए, because हमने बात की कि हर food product के लिए एक different kind के packaging material की requirement है. हम market में भी देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे food product है लेकिन उनके लिए पैकिंग सबकी अलग अलग है. किसी को हम बोतल के अंदर पैक कर रहे हैं, किसी को ग्लास बोतल के अंदर पैक कर रहे हैं. सम फूड प्रोडक्ट आर जनरली पैक्ड इन द प्लास्टिक बोतल, सम फूड प्रोडक्ट आर पैक्ड इन द प्लास्टिक पाउचेस, किसी को पेपर में भी पैक कर रहे हैं. समटाइम्स वी यूज द कैन, मेटल के कैन यूज कर रहे हैं, समटाइम्स ग्लास जार यूज कर रहे हैं, रैपिंग पेपर यूज कर रहे हैं. तो डिफरेंट काइंड के पैकेजिंग मटेरियल्स हैं. सो उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि किस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के लिए कौन सा पैकेजिंग मटेरियल बेस्ट है. तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए वी हैव 3 पैरामीटर्स. द फर्स्ट वन इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड वन इज द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स. सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स हाउ मच प्रेशर इट कैन बियर.
हाउ मच टेंसाइल स्ट्रेंथ इज देयर। अगर मेरे को कोई फूड प्रोडक्ट पैक करना है तो हमें मेरे को देखना पड़ेगा कि कितना वो लोड बियर कर सकता है, कितनी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्या उसका प्रिंटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते उस पेपर के ऊपर, उस पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल्स के ऊपर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा कि उसका जो नेचर है वो फूड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सपोज हम उसको टीयर करना चाह रहे हैं, इजीली टीयरेबल है या नहीं है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि वो केमिकली कोई रिएक्ट तो नहीं कर रहा है फूड प्रोडक्ट के साथ, केमिकली कोई रिएक्शन। सपोज हमारा एसिडिक फूड है और जो हमने पैकिंग मटेरियल यूज किया हुआ है उसके साथ कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है। केमिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि वो वाटर को, आपके ऑयल को, फैट को और आपकी गैसेस को ट्रांसपोर्ट तो नहीं कर रहा है। ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कि जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है वो उनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हम बात करते हैं पैकिंग को, जब हम फूड को पैक करते हैं तो पैकिंग कब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक हम उसकी सीलिंग नहीं कर देते। जस्ट नॉट ओनली फिलिंग द फूड प्रोडक्ट इन ए कंटेनर इज नॉट ए पैकिंग until and unless we are not going for the sealing. So जब हम उसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं then we will talk about the sealing. The sealing of the container. कि कंटेनर की सीलिंग प्रॉपर हो पा रही है नहीं हो पा रही। Like if you are using a paper then we cannot seal it until and unless if you are not using any kind of LDP or HDP. सीलिंग प्रॉपर्टी नहीं आएगी। हैंडलिंग उसकी इजी है या नहीं है। अगर हमने पेपर को पैक किया है और उसको हम कैरी कर रहे हैं तो एक चांसेस होंगे कि वो ब्रेक हो जाएगा, आपके मटेरियल आपका लीक हो जाएगा उसके अंदर से, तो वो चांसेस है। हैंडलिंग भी उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। सपोज हमने कैन के अंदर पैक कर दिया तो कैन के अंदर पैक करने के बाद नाउ आवर फूड प्रोडक्ट इज सेफ। समटाइम्स हम देखते हैं कि बिस्किट्स को पैक करते हैं और जब कस्टमर तक, कंज्यूमर तक जब वो बिस्किट्स का पैकेट पहुंचता है तो इट विल बी रप्चर्ड, टूट जाता है, बिकॉज वो पैकिंग मटेरियल उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए फिट नहीं है, बिकॉज वो प्रेशर को बियर नहीं कर पा रहा। सो उसीलिए हम क्या करते हैं, उस बिस्किट्स को हम सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल्स के अंदर पैक करते हैं, कार्टन के अंदर पैक करते हैं, और कार्टन के अंदर पैक करने से अब उसकी हैंडलिंग ईजी होगी। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द लेबलिंग। तो लेबलिंग जब हम करेंगे वो भी एक परफॉर्मेंस का पार्ट है कि लेबलिंग उसके ऊपर हम इजीली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे पैकिंग मटेरियल्स के ऊपर, या हम लेबलिंग कर रहे हैं या डायरेक्ट प्रिंटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, स्टिकर को पेस्ट कर रहे हैं, पेस्टिंग भी कर सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स दैट वुड बी हैपन। सो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे पैकिंग मटेरियल्स की, तो पैकिंग मटेरियल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस, these three characteristics we will discuss. Now next thing is the labeling. So अभी तक हमने लर्नर्स बात की, हमने पैकिंग की, फूड प्रोडक्ट को हम पैक कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड के पैकेजिंग मटेरियल्स हैं हमारे पास, प्लास्टिक है, हमारे पास मेटल्स हैं, कैंस हैं मेटल के, हमारे पास ग्लास है, हमारे पास पेपर है। सो पैकिंग करने के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज द लेबलिंग, एंड देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द लेबल्स। सो दैट्स व्हाई द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक रेगुलेशन लेके आए हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस that came in 2020. Nowadays we generally label with that particular regulations. So it is a legal requirement, that's why मैं बात कर रहा हूं कि रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम लेबल करते हैं। लेकिन अब हम सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि लेबलिंग का क्या पर्पस है, क्या काम करता है। So labeling, it refers to any written or printed or graphic matter that is present on the food packet. Therefore, labels should be attractive, convey a message and provide information about the product in short time.
It is also required for the legal obligations. So suppose we wants to sell any food product in the market, so without proper labeling we cannot sell it. Proper labeling is required for that, and that labeling it can be done by two methods. The first, pasting of label on the packet. हमने स्टिक कर दिया, लेबल अलग से प्रिंट किया और उसको हमने पेस्ट कर दिया पैकिंग मटेरियल्स के ऊपर, जैसे कि हम ग्लास कंटेनर्स के ऊपर देखते हैं, बिकॉज ग्लास पे डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, सो उसके ऊपर हम लेबल को स्टिक कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं. दैट इज द पेस्टिंग ऑफ लेबल ऑन पैकेट. द सेकेंड वन इज द डायरेक्ट प्रिंटिंग ऑफ लेबल्स ऑन पैकेट. इसमें हमने क्या किया, हमने सपोज हमारे पास पेपर है, हमारे पास प्लास्टिक है, हमने उसके ऊपर डायरेक्ट प्रिंटिंग कर दी. मोस्टली चिप्स है, आपके कुरकुरे हैं, बिस्किट्स हैं, उसके ऊपर जो प्लास्टिक जो हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्ट प्रिंटिंग होती है. सो सच काइंड ऑफ पैकिंग इज द डायरेक्ट प्रिंटिंग और लेबलिंग ऑन द पैकेट. अब हमने बात की कि हम उसको पेस्ट भी कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं जो हमने पैकिंग की है उस प्रोडक्ट के हम कंपोनेंट की बात करते हैं लेबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के पैनल है. द फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल. लेबलिंग के लिए हम दो पैनल को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं. प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल दैट इज कॉल्ड एज द पीडीपी. इट इज द मेन पैनल जो कि सामने दिखता है. कंज्यूमर सबसे पहले प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल को देखता है. द सेकेंड वन इज द साइड पैनल. सो जो फ्रंट का जो पैनल है दैट पैनल इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल. इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्प्ले ऑन द पैकिंग एंड टिपिकली फ्रंट साइड में इसको रखते हैं जब हम सेल्फ के अंदर प्लेस कर रहे हैं. सो इट इज जनरली प्लेस इन द फ्रंट साइड एंड इट carry all the necessary information. Not all the information is required, but some major information it can be taken inside there. The second one is the side panel. So side panel में हम जब यूज करते हैं तो हम जो different information हमें देनी होती है तो हम side panel को यूज करते हैं. So learners, अभी हमने बात की लेबलिंग के दो पैनल्स की. So अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. So let's meet after a small break. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने. हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने. धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो. धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो. कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो. कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो. मित्रों हम उठे और
बनिए प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीत स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लर्नर्स, ब्रेक से पहले हमने जो डिस्कस किया था पैकिंग मटेरियल्स को, उनका फंक्शन क्या है, कितने टाइप के पैकिंग मटेरियल्स हैं, और फिर हमने जो स्टार्ट किया था लेबलिंग। सो अब हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं, वी आर कंटिन्यूइंग विद द लेबलिंग। सो हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल है, साइड पैनल है, तो उनको हम लेबलिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो जो प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल है, बेसिकली उसके ऊपर कुछ एक इन्फॉर्मेशन आती है, लाइक हम ब्रांड नेम जो देते हैं, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ पिक्चर, वट एवर वी वांट्स टू डिस्प्ले ऑन द लेबल, वो हम प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल के ऊपर देखते हैं। एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, सपोज FSSAI रजिस्ट्रेशन है या हैसअप सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफिकेशन है, दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन दैट इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन द प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल। देन ट्रेड नेम हम प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल के ऊपर देते हैं। ये प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल वो पैनल है जो डायरेक्टली कंज्यूमर, मतलब फर्स्ट जब कंज्यूमर प्रोडक्ट को देखता है तो प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल को ही देखता है। ना नेक्स्ट पैनल इज द साइड पैनल, एंड साइड पैनल इट मे बी लेफ्ट राइट साइड पैनल, कई बार बॉटम पे भी होता है पैनल, तो जनरली हम साइड पैनल्स को ही कंसिडर करते हैं। अब साइड पैनल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है, लाइक इंग्रेडिएंट्स, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स वी कैन प्रोवाइड ऑन द साइड पैनल्स, methods of preparation if he wants to provide on the packet, method of storage conditions we can provide on the side panel, instruction for the making of the food product, any kind of instruction if you wants to provide, like how मैगी के केस में कैसे मैगी को बनाएं या कैसे उसको रिकंस्टिट्यूट करें if milk powder is there, the address of the company from where we are going to manufactured, कहाँ पे पैक हो रहा है उसका एड्रेस, वो सब हम साइड पैनल के ऊपर देते हैं। साइड पैनल में ही हम नेट वेट देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, पैकिंग डेट, डेट ऑफ एक्सपायरी, जितनी भी डेट है सारी की सारी डेट हम वी जनरली प्रोवाइड ऑन द साइड पैनल्स। द प्राइस, MRP, USP, that is also provided on the label and it is generally provided on the side panel. Customer care number is also there, customer feedback number, email ID that can also be provided, वो हम सारा हम साइड पैनल के ऊपर देते हैं। तो लेबल को जब हमें देना है, जब स्टिक करना है, तो हम दो टाइप के लेबल बनाते हैं, PDP प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल के लिए लेबल एंड साइड पैनल के लिए लेबल, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं information, what kind of information we can provide on the label. That information, it can be categorized in two forms, the nutritional information and non-nutritional information.
In nutritional information, we have to give the information about the ingredients, which kind of ingredients we had used for the making of a particular food. If we had used any kind of additives, we have to give the information in the nutritional section. Instruction for preparation, that is a part of the nutritional information. Nutrient content, nutritional facts, that are the part of the nutritional information. Nutrient supplemented, if fortification has been done, वो भी हम न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में देंगे. एंड सर्विंग साइज, कितना हम सजेस्ट कर रहे हैं, हाउ मच सर्विंग साइज इज सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, फॉर मैन, वुमेन, फॉर किड्स, कितना सर्विंग साइज सुटेबल है, वो हम न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में देंगे. द नेक्स्ट वन इज नॉन न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन. अब इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है दैट आर आल्सो रिक्वायर्ड एंड दैट आर कॉल्ड एज द नॉन न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन. अब इसमें क्या क्या आएगा, इंस्ट्रक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ दैट फूड प्रोडक्ट कैन बी ओपन, दैट पैकिंग मटेरियल कैन बी ओपन, द स्टोरेज कंडीशंस, डेट ऑफ पैकिंग, net weight, gross weight, registration, any kind of registration like FSSAI registration, cost, MRP, USP, so such kind of information that is non nutritional information, और उन information को हम provide करते हैं लेबल के ऊपर. अब न्यूट्रिशनल लेबलिंग में हम जो कंसिडर कर रहे हैं, साइज ऑफ द सर्विंग इन टर्म्स ऑफ ए कॉमन हाउस होल्ड मेजर लाइक टी स्पून, टेबल स्पून, तो हम साइज ऑफ सर्विंग में हम उसको न्यूट्रिशनल लेबलिंग में डालते हैं. नंबर ऑफ सर्विंग इन वन पैकेज, कि कितने सर्विंग हो सकती है. सपोज हम उसको 500 ग्राम की हम कोई पैकिंग कर रहे हैं और एक सिंगल सर्विंग 100 ग्राम की है, सो वी कैन से दैट द 5 सर्विंग इज देयर. नंबर ऑफ किलो कैलोरीज, हाउ मच एनर्जी दैट फूड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी प्रोवाइड, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल लेबलिंग. Amount of fat, amount of carbohydrate, amount of protein that are present inside that, that is a part of the nutritional labeling. How much fat is there, how much protein, carbohydrate, minerals that are there. Cholesterol content, it also be considered in the nutritional labeling, कि कितना उस प्रोडक्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल है. ट्रांस फैट, how much amount of trans fat is there. Certain vitamins, for some food product that are rich in certain kind of vitamins, sometimes it is rich in like juices that are rich in vitamin C, तो वो हम nutritional labeling के अंदर देंगे. Some food product that are rich in some specific kind of minerals like calcium, iron, iodine, so हम उसको हम minerals को हम nutritional information में देंगे. The next, the formula and the category of the food, कि किस category का है. सपोज हमने इन्फेंट के लिए फूड बनाया है, हमने विनिंग फूड बनाया है, वी हैड प्रिपेयर ए फूड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर के लिए हमने फूड बनाया है. सो विच काइंड ऑफ कैटेगरी इज देयर, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल लेबलिंग. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैंडेटरी लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स. एज पर द रूल, मैंने आपको बताया कि जो पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लेबल करना पड़ेगा हमारे फूड प्रोडक्ट को. सो देर आर सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट, सर्टेन थिंग्स दैट मस्ट बी देयर ऑन द फूड पैकेट. द फर्स्ट थिंग इज द नेम ऑफ द फूड एंड ब्रांड नेम. सो वी ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द फूड एज वेल एज द ब्रांड नेम. लाइक मैंने कोई फूड प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसका ब्रांड, सपोज मैंने एक्स ब्रांड उसको दिया है. प्रोडक्ट है कुकीज, मैंने कुकीज बनाई है, ब्रांड नेम है एक्स. सो मेरा ब्रांड नेम मेरे को देना जरूरी है कि मैं किस ब्रांड नेम से उसको सेल करूंगा और प्रोडक्ट का नाम क्या है, एक्चुअल नेम क्या है, दैट इज मैंडेटरी ऑन द लेबल. द सेकेंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स इट ऑलवेज बी प्रोवाइडेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. If you will see any food packet, you will always found the list of ingredients are there, कि उसके अंदर जब हमने बनाया है तो क्या क्या ingredients, क्या क्या हमने उसके अंदर डाला है तब वो food product बना है. तो वो ingredient होता है, but there is a rule, we always have to provide in the descending order, means जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर जो सबसे कम यूज हुआ उसको सबसे लास्ट में रखेंगे. So accordingly we have to provide the list of ingredients.
द थर्ड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन. अब जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, वी ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड आइदर पर 100 ग्राम और पर 100 ml. अगर आपका जो फूड प्रोडक्ट इफ इट इज इन सॉलिड फॉर्म, देन वी ऑलवेज हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन इन ग्राम्स. इफ इट इज इन लिक्विड, देन ml में आ जाए. और परसेंटेज कैन ऑल्सो बी कंसिडर, बिकॉज 100 ग्राम 100 ml per 100 gram per 100 ml, that is equivalent to percentage. Second nutritional information we can also provide if the size of the packet or the food content is very less, then we can provide the nutritional information in per serving size, कि एक सर्विंग में क्या न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, क्या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है, that we have to give. The next mandatory requirement is logo for veg and non-veg. सो आपका जो फूड प्रोडक्ट है, सपोज इफ वी हैड एडेड एग इनसाइड दैट, हमने केक बनाया और एग डाला है, सो इट विल बी कंसिडर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन वेज. हमने बिना एग के केक बनाया, देन इट इज कंसिडर एज ए वेजिटेरियन कैटेगरी. सो विच कैटेगरी इज देयर, आइदर इट इज वेज और नॉन वेज, वी ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड द लोगो. सो सपोज इफ द फूड प्रोडक्ट इज वेजिटेरियन, देन वी ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड ए green square. In that green square we have to provide a green circle. But in case of non-veg, the green square or green rectangular can be used, but in that green square there is a triangle, and the color of that logo is, the triangle as well as the rectangle is reddish brown. अगर वो रेडिश ब्राउन कलर का रेक्टेंगुलर है, उसके अंदर ट्राइंगल है, सो दैट food product is considered as a non-vegetarian food. The next mandatory information is the manufacturer detail. So sometimes manufacturer अलग होता है, पैकर अलग होता है और मार्केटर अलग होता है, सेलर अलग होता है. So we always have to give the details of all the three parties. जिसने बनाया हम उसका मैन्युफैक्चरर डिटेल्स देंगे, जिसने पैक किया है उसकी पैकिंग डिटेल देंगे, और जिसने उसको मार्केट में मार्केटिंग की है, सेल किया है, हम उसकी इंफॉर्मेशन देंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नेट क्वांटिटी. दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. वी ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट क्वांटिटी, द नेट क्वांटिटी वी हैव टू प्रोवाइड, हाउ मच कंटेंट इज देयर, हाउ मच फूड इज देयर इन ए पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट, दैट वी हैव टू प्रोवाइड ऑन दैट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट information or mandatory information is best before date, expiry date and used by date. So either we have to use best before date or used by date. If the shelf life is longer, then हम generally use करते हैं best before date या expiry date use करते हैं. But if the shelf life is shorter, तब हम use करेंगे used by date. Generally milk shelf life छोटी है, bread shelf life is small, we generally use the term used by date. In case of jam, jellies, biscuits, shelf life बड़ी है, लंबी है, then we generally use best before date or expiry date. Next one is batch number and lot number. On each food product, in each packed food product, we have to provide a batch number or lot number. वो कहाँ हेल्प करेगा? वो हेल्प करेगा ट्रेसेबिलिटी में. सपोज आपके फूड प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, अब उस डिफेक्ट की वजह से कंज्यूमर्स की कंप्लेंट आ रही है, अब कंज्यूमर की कंप्लेंट आई उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट, उस बैच नंबर की, देन वी आर एबल टू इजीली रिकॉल दैट फूड प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई दैट बैच नंबर एट लॉट नंबर इज इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज FSSAI logo and license number. So every food commodities, now it is mandatory that every food commodity they should have a valid FSSAI either registration number or a license number. So in the food packet we have to provide the FSSAI logo, and along with that logo we have to give the license or registration number on that. Next one is MRP, maximum retail price. We have to give, it is mandatory. Without MRP we cannot sell it. अगर हम उस पर MRP या USP नहीं दे रहे हैं तो हम उसको सेल करेंगे, तो लेकिन हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे और उसको एज ए सैंपल हम उसको मार्केट में हम उसको रख पाएंगे.
So MRP, maximum retail price, and USP, unit sale price. Nowadays the USP is also mandatory in the food commodities. So we always have to give the unit sale price कि 1 ग्राम का या 1 ml का क्या रेट है उसके अंदर. The next mandatory information is allergen declaration. In our food there are certain ingredients that may cause allergy. Sometimes gluten है जो allergy cause करता है, lactose intolerance है, peanuts cause the nuts, they may cause the allergy, soybean can cause the allergy, egg may also cause the allergy, fish can also cause the allergy. So that allergen declaration we also have to provide on that label. Suppose your food product is made from the refined wheat flour, then you have to mention that the product, it contain gluten, it may cause allergy. The product, suppose आपका प्रोडक्ट जिसमें स्किम मिल्क पाउडर से बनाया है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा दिस प्रोडक्ट contains milk solid, it may cause allergy. So allergen declaration is also important. We also have to provide the allergen declaration on that. Next mandatory requirement is customer care and feedback number. Either phone number, mobile number, email ID that we have to provide on the label so that the consumer can reach. They can give if there are any complaints, if they want to submit any kind of feedback, so they can easily access them. So these are the certain mandatory labeling requirements as per the rule we have to follow and we have to provide on the label. Next, we are talking about the challenges in food packaging in India. अब ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमने बात कर ली सारे पैकेजिंग मटेरियल्स की, लेबलिंग की बात कर ली, लेकिन अब हमारे पास चैलेंजेस क्या है. द फर्स्ट चैलेंज इज फेक एंड मिसलीडिंग लेबल्स. जो फूड प्रोड्यूसर है या फूड मार्केटर है, सेलर है, वो मिसलीड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को विद द हेल्प ऑफ देयर फेक लेबल. अंदर कुछ है, बाहर लेबल पे कुछ डाल रहे हैं. सपोज उन्होंने कुकीज बनाई हैं, बिस्किट्स बनाए हैं, बाहर बिस्किट्स के ऊपर नट्स उन्होंने पिक्चर्स में डाले हुए हैं, काजू, बड़े बड़े काजू, बड़े बड़े आलमंड्स, बड़े बड़े वॉलनट्स उन्होंने दिखाए हुए हैं. एंड इफ यू विल गो इनसाइड, इफ यू विल फाइंड, देन देयर इज अ वेरी स्मॉल एंड वेरी टीनी पीसेस ऑफ नट्स आर देयर. So such kind of advertisement is called as the misleading advertisement. कैसे कर रहे हैं? लेबल के थ्रू कर रहे हैं. तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए कि हम उसको मीन्स वी कैन नॉट मिसलीड द कंज्यूमर्स. इफ वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस देन इट इज इलीगल प्रैक्टिस. द सेकेंड चैलेंज इज यूज ऑफ नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक्स. अब हमारे पास बहुत सारे प्लास्टिक है. अभी हमने जब डिस्कस किया, सो वी हैड फाउंड polyethylene, polystyrene, PET, PVC. So there are lots of packaging material. But इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्लास्टिक है. But these plastics are not in food grade. तो जनरली क्या कर रहे हैं, कुछ जो प्रोड्यूसर हैं, पैकर्स हैं, वो नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक के साथ या नॉन फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल्स के साथ उसको पैक कर रहे हैं. If they are doing such kind of practice, then the contamination will take place. The minute particles of the plastic, they may contaminate our food product. The third challenge is environmental concerns. Environmental concerns क्या है? हम पैकिंग के लिए प्लास्टिक तो यूज कर रहे हैं, but that plastic is non-biodegradable. It act as a waste. So जो प्लास्टिक का जो वेस्ट आया है वो हमारे लिए एक एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन का काम कर रहा है. द नेक्स्ट चैलेंज इज हाई कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल्स. इफ वी विल गो विद द सस्टेनेबल मटेरियल्स देन द कॉस्ट विल बी वेरी हाई. द नेक्स्ट चैलेंज इज कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लिटरेसी लेवल. कंज्यूमर का जो अवेयरनेस है, लिटरेसी है, अब वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है. अब उस कंज्यूमर की लिटरेसी के अकॉर्डिंग ही हम उसको लेबल को हम मार्केट में रख सकते हैं. तो कंज्यूमर को अवेयर करना भी इंपॉर्टेंट है, एक ये चैलेंज. सो लर्नर्स, आज हमने बात की फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग की. सो आई होप यू हैड अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस सेशन. नमस्कार लर्नर्स.